میرے پیارے آج جس گلی سے گزر کے جاؤ, جس کوچے سے گزرو, جس نگر سے گزرو, کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ گلی گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی مسلمانوں کے بچے ہیں, بڑے بڑے موبائل جس کے ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں, پب جی سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک گیم اور چلا ہے جس کا نام ہے فری فائر, وہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی لوڈو سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے, کسی کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہیں, کوئی شراب پیتا ہوا نظر آتا ہے. اے میرے پیارے, ذرا غور تو کرو, یہ مسلمان کے بچے ہیں, یہ شرابیں پینے نہیں آئے ہیں, مسلمان کے بچے ہیں, پب جی کھیلنے نہیں آئے ہیں, مسلمان کے بچے ہیں, فری فائر کھیلنے نہیں آئے ہیں, یہ مسلمان کے بچے تاش سے کھیلنے نہیں آئے ہیں. ارے مسلمان کے بچے کسی کو دھوکہ دینے نہیں آئے ہیں. ارے مسلمان کے بچے تو پوری دنیا کو یہ بتانے آئے ہیں کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. عالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں, ماں کہتی ہے بیٹا کیا ہوا, بات تو بتا, آخرکار بات کیا ہے؟ تو یہی بچہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, میری ماں تجھ کو نہیں پتا ہے, تو نہیں سمجھے گی. اے نادان, یہ تیری ماں ہے, یہ اس وقت بھی سمجھتی تھی جب تو دودھ پیتا تھا, تجھے بولنا نہیں آتا تھا. آج تو کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھو گی. ارے ذرا غور تو کرو میرے پیارے, یہ بچے ہی تو ہیں بیچارے. ماں باپ زندگی میں رہ کر جب تک حیات تھے, سیب کھانے کے لیے ترستے تھے, انار کھانے کے لیے ترستے تھے کہ مجھ کو سیب مل جائے, انار مل جائے, مگر اس کا بچہ اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا. اس کا بچہ نہیں سوچتا تھا کہ میرے ماں کو جو ہے سیب پسند ہے یا میرے ماں کو جو ہے انار پسند ہے, کبھی زندگی میں لا کر کے نہیں دیے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, تب سیب لے کر کے آتا ہے, تب لے کر کے آتا ہے جب ان کو کچھ کھایا نہیں جاتا. جب کچھ کھایا نہیں جاتا, کچھ نہیں کھا ملتا ہے, یہاں تک کہ پانی بھی نہیں پینا جاتا, تب سیب لے کر کے آتا ہے, لیجیے ماں جی اب سیب کھا لیجیے. اے نادان, اب تیرا سیب کھلانے سے کیا فائدہ جب وہ کھاتی نہیں ہے, تو تیرے کھلانے سے کیا فائدہ؟ ارے اگر ماں باپ کی عزت کرنا ہے تو زندہ پہ کرو, مرنے کے بعد وہ تو غیر بھی رو دیا کرتے ہیں, مرنے کے بعد تو غیر بھی رو دیا کرتے ہیں. آج ہر انسان سمجھتا ہے کہ اللہ جو ہم کو عزت دے رہا ہے, جو شہرت دے رہا ہے, جو بلندی دے رہا ہے, اس میں اضافہ ہو جائے, وہ بڑھ جائے. مگر کبھی غور کیا کہ عزت کیسے بڑھے گی, شہرت کیسے بڑھے گی, بلندی کیسے حاصل ہوگی؟ کیا غرور کرنے سے, کیا تکبر کرنے سے, کیا زمین پہ اکڑ کے چلنے سے, کیا سلام کا جواب نہ دینے سے, کیا ماں باپ کا دل دکھانے سے, یا کسی پہ تہمت لگانے سے, یا کسی کو گالی دینے سے, یا کسی کی امانت میں خیانت کرنے سے؟ نہیں 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 میرے پیارے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر بلندی حاصل ہوگی, اگر تم کو عزت ملے گی, اگر تم کو شہرت ملے گی, تو جتنے آپ خاکسار ہوں گے, جتنی آپ سادگی کی زندگی گزاریں گے, جتنی انکساری کے ساتھ آپ رہیں گے, پروردگار آپ کو بڑھاتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. سوچا آپ نے, کبھی غور کیا کہ ایک درخت ہوتا ہے جس پہ پھل آتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ آم کا پیڑ لے لیجیے, آم کا, اس کی جو ڈال ہوتی ہے, جب اس پہ آم نہیں آتا ہے تو سیدھی ہوتی ہے, مگر جیسے اس پہ پھل آنے لگتا ہے وہ جھکنے لگتی ہے, نیچے کو جھکنے لگتی ہے. وہ ہم کو سبق دیتی ہے, وہ ہم کو درس دیتی ہے کہ اے لوگوں سنو, جب پروردگار ہم کو کوئی نعمت دے تو غرور مت کرو, تکبر مت کرو, زمین پہ اکڑ کے مت چلو. جب پروردگار ہم کو نعمت دے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ غوثیہ, یا غوث, نعرہ غوثیہ, یا غوث, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, زندہ باد, مولانا سلیم چشتی صاحب قبلہ زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. یا آپ نے نہیں دیکھا, کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ میرے پیارے, آپ نے پھل کے بارے میں تو سن لیا ہوتا ہے, جھکا چلا جاتا ہے, مگر میرے پیارے ذرا غور کرو, جو اکڑتا ہے پروردگار اس کو پکڑتا ہے, جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ
जो अकड़ता है परवरदिगार उसको पकड़ता है, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। कैसे? अल्लाह के वली हजरत बहलोल दाना के पास में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर, बड़े अदब के साथ में बोला, हुजूर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने पीने की पैसे नहीं है, हुजूर करम कीजिए कि मैं मालदार हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं। तो अल्लाह के वली हजरत बहलोल दाना ने फरमाया, सुनो तुम ऐसा करो, जितना काला कपड़ा, जितना तुम्हारे पास पैसा हो, पैसा इकट्ठा करो और काला कपड़ा लो, काला कपड़ा, जितना सारा काला कपड़ा तुमको मिले इकट्ठा कर लो। कहा ठीक है हुजूर, ऐसा ही करूंगा। अब वो चला गया, जाने के बाद में उसने किसी से पैसे लिए, उसके पास में जो पैसे थे सारे पैसे इकट्ठा किए, करने के बाद में यहां तक के दूर दूर तक जितना काला कपड़ा था सारा काला कपड़ा खरीद लिया। खरीदने के बाद में चंद दिन गुजरे, क्या देखा, एक अमीरजादे का इंतकाल हो गया, एक बहुत अमीर शख्स का इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसका शोक मनाने के लिए, उसका गम मनाने के लिए उनको काले कपड़े की बहुत जरूरत पड़ी। काला कपड़ा सबको पहनना था, इसलिए काले कपड़े की बहुत जरूरत पड़ी। तो यहां तक कि सारी जगहों पर काला कपड़ा दिखाया, काला कपड़ा ना मिला। यहां तक कि जब काला कपड़ा नहीं मिलता है तो सब लोगों ने बताया कि फला शख्स के पास में काला कपड़ा मिल जाएगा, तो वहां चले जाओ। अब वो शख्स उसी शख्स के पास में जाते हैं वो लोग। जब जाते हैं तो वो शख्स कहता है, ठीक है मेरे पास काला कपड़ा बहुत है, तुम्हें मुंह मांगा दिया जाएगा, मगर मैं पैसे मुंह मांगे लूंगा। कहा ठीक है, पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। यहां तक कि काला कपड़ा जितना उसके पास में था सारा का सारा काला कपड़ा बेच दिया, पैसे मुंह मांगे लिए, इतना मालदार हो गया, इतना पैसे वाला हो गया कि बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लगा। जब रहने लगा तो बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत मालदार हो गया। होने के बाद में कई दिन गुजर गए, दिन गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया, टाइम गुजरता चला गया। तो एक रोज ही उसी रास्ते से जा रहा था। कौन से रास्ते से? जहां हजरत बहलोल दाना से मुलाकात हुई थी, वहीं पहुंच गया। अल्लाह के वली वहीं तशरीफ फरमा है। वहां पहुंचा तो ये अपनी सवारी पे सवार था। होने के बाद में इसने बड़े हुरूर के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ में अल्लाह के वली बहलोल दाना से कहा, सुनो, बहलोल दाना ने से कहा कि ऐ दीवाने, जरा अब बता अब क्या खरीदूं। जरा इसका लहजा देखिए, पहले किस अंदाज से बोला था, हुजूर बताइए मैं क्या खरीदूं जिससे मैं मालदार हो जाऊं, मालामाल हो जाऊं। मगर जब दूसरी बार जाता है, जब मालदार हो जाता है, तो अल्लाह के वली से कहता है, दीवाने जरा अब बता अब क्या खरीदूं। तो हजरत बहलोल दाना फरमाते, तू ऐसा कर, तू तरबूज खरीद ले। कहा ठीक है तरबूज खरीद लूंगा। कहने लगा इससे भी मुझे बहुत फायदा होगा। वो चला गया, अपने घर पे जाता है। जाने के बाद में जितना उसके पास में पैसा होता है, दूर दूर तक जाता है और तरबूज खरीद लेता है। जितना सारा उसके पास में पैसा था सारे के सारा तरबूज खरीद लिया। खरीदने के बाद में इसने अपने घर पे संभाल कर रखा। एक दिन गुजर गया मगर कोई तरबूज का खरीदने वाला ना आया। 2 दिन गुजर गए मगर कोई तरबूज का खरीदने वाला ना आया। हफ्ता गुजर गया मगर कोई तरबूज का खरीदने वाला ना आया। यहाँ तक कि सारे तरबूज सड़ जाते हैं, सारे तरबूज बेकार हो जाते हैं। अब ये पैसे का भिखारी बन गया, एक एक पैसों को दुखी हो गया, इसके खाने पीने के भी लिए ये दुखी हो गया। होने के बाद में चलता था, गलियों में जाता था, मगर इसको कोई खाना नहीं खिलाता था, इसको कोई पैसा नहीं देता था। एक एक पैसे को परेशान हो गया। जब परेशान हुआ तो अल्लाह के वली हजरत बहलोल दाना से मुलाकात हुई। होने के बाद में कहा, हुजूर ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं तो एक एक पैसे से परेशान हो गया, एक एक पैसे से दुखी हो गया, हुजूर ये आपने क्या किया। तो अल्लाह के वली ने फरमाया, ये मैंने ना किया बल्कि तेरे लहजे ने किया, बल्कि तेरे लहजे ने किया। पहले तूने मुझसे अदब से पूछा था, इसलिए मैंने तुझको बताया, उसमें फायदा हुआ। मगर जब तूने मेरे दूसरी बार आया था, बड़े गुरूर के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ में पूछा था, तो मैंने तुझे वैसे ही जवाब दिया। इसलिए कहते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हुजूर गौसे आजम की चौखट पे एक बंदा रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था। हजरत अली बिन हैती हुजूर गौसे आजम के बड़े महबूब है। वो आते हैं हुजूर गौसे आजम से, कहते हैं, हुजूर वो शख्स जो बाहर दरवाजे पे रो रहा है, आप उसको माफ कर दीजिए, इसलिए कि उसने मेरे पैर पकड़ के कहा कि हुजूर गौसे आजम से कह देना मुझे माफ कर दे, मैं यहां से चला जाऊंगा। जब इतना कहा तो हुजूर गौसे आजम फरमाते, अली बिन हैती तुम कहते हो तो ठीक है, उससे कह दो जाओ, तुम जा सकते हो, तुम्हें गौसे आजम ने माफ कर दिया। अब अली बिन हैती उनके पास में जाते हैं। जाने के बाद में कहते हैं, सुनो, तुम्हें हुजूर गौसे आजम ने माफ कर दिया, तुम जाओ।
अब उन्होंने इतना सुना, बड़े खुश हुए। होने के बाद में चंद कदम चले, जब चंद कदम चले, चलने के बाद में उड़ने लगे, हवा में प्रवास करने लगे। अली बिन हैती ताज्जुब में पड़ जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, आखिरकार ये क्या मामला है, ये तो उड़ रहे हैं। दौड़े दौड़े हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आते कहने लगे, हुजूर माजरत चाहता हूं, मैंने उस बंदे के बारे में ना पूछा कौन है, मैंने अर्जी लगा दी, आपने करम फरमा दिया, आपने उसको छोड़ दिया, मगर वो चंद कदम चला और उड़ रहा है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि वो पहले भी उड़ रहा था। का हुजूर हुआ क्या था? का हुआ ये था, जब वो उड़ रहा था, होने के बाद में कुछ उसने ऐसा वजीफा किया था, परवरदिगार ने उसको उड़ने की ताकत दे दी थी, मगर जब वो उड़ रहा था और जब मेरी बगदाद की सरहद में आया तो उड़ते 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 सोच रहा था कि यार मुझसे ज्यादा मकबूल कौन होगा, मुझसे ज्यादा मकबूल कौन होगा। अगर कोई मुझसे ज्यादा मकबूल होता तो वो भी हवा में प्रवास करता हुआ नजर आता, वो भी हवा में उड़ता हुआ नजर आता। गौसे आजम फरमाते हैं, वो उड़ते उड़ते सोच रहा था, मैं बैठे बैठे देख रहा था, मैंने उसको पकड़ा और अपनी चौखट पे गिरा दिया और गिरा करके कहा कि सुनो, या हजरत अली का फैजान लिए हुए बैठे हैं। अरे परवरदिगार ने इतना नवाजा है कि जिसको चाहे विलायत अता कर देते हैं और जिसकी चाहे विलायत छीन लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भी जिंदाबाद। जिसकी चाहे विलायत जिसको चाहे अता कर देते हैं और जिसको चाहे उसकी विलायत छीन लेते हैं। सुभान अल्लाह। अरे वाह क्या मर्तबा है, गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे। गौसे आजम की करामत देखिए कि जैसे बगैर माइक से आगे वाले को आवाज पहुंचती थी, बगैर माइक से वैसी आवाज पीछे वाले को पहुंचती थी। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की बारगाह में 70 हजार मुरीद सुनने आते थे। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे और बयान कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए, या कुंडी हिल रही थी, जब आए तब भी कुंडी हिलती हुई मिली, बिस्तर गर्म था, चरिंद परिंदे जहां पर थे सब अपनी अपनी जगहों पर थे। तो एक यहूदी गुजर के जा रहा था, जब उसने ये बयान को सुना तो कहने लगा, ये बाबा क्या बयान करते हैं कि एक लम्हे में कोई आसमान से आ गया, आखिरकार क्या मामला है। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, तुझे पता नहीं अब्दुल कादिर जिलानी है और मदीने के ताजदार की बात कर रहा है। जब इतना कहा तो मुरीद समझ गए जरूर इसने किसी ने पंगा ले लिया है, हुजूर गौसे आजम से कुछ कह दिया है। मुरीद समझ जाते हैं। जब वो यहूदी अपने घर पे जाता है, मछली लेकर के जाता है, मछली अपनी बीवी को दी, कहा ऐ मेरी बीवी सुनो, ये मछली बना दो, मैं अभी आता हूँ। बीवी ने कहा मेरे शौहर कहाँ जाते हो, बात तो बताओ, बात क्या है, आखिरकार बात क्या है, तुम कहाँ जाते हो। तो वो कहने लगा मैं नहाने के लिए जाता हूँ दरिया में। कहा ठीक है चले जाइए, तुम मछली बना लो। वो चला गया, जब दरिया में पहुंचा, जब उसने डुबकी लगाई, तो मर्द था, मगर जब उसने अपने सर को बाहर निकाला तो औरत बन गया। जब उसने अपने सर को बाहर निकाला तो औरत बन गया। यहां तक कि एक रिवायत के हिसाब से मिलता है, एक रिवायत में मिलता है कि उस किनारे पे एक धोबी था। दूसरी रिवायत में मिलता है कि एक शहजादा वहां टहलने के लिए आया था। जब उसने देखा वो शहजादा अपने पास में ले गया, अपने साथ में ले गया और अपने साथ इस शहजादे ने इसको 9 साल रखा। कितने साल रखा? 9 साल रखा। 8 बच्चे पैदा हुए। जब 8 बच्चे होने के बाद में एक ये तो औरत बन चुका था, इसने अपने बच्चों से कहा कि ऐ मेरे बच्चों सुनो, मैं नहाने के लिए जा रही हूं, क्योंकि ये औरत बन चुका था, मैं नहाने के लिए जा रही हूं। अब वो नहाने के लिए चली जाती है, यहां तक कि जैसी डुबकी लगाती है तो औरत थी, मगर जब उसने सर को उठाया फिर से वही मर्द बन गया। तो बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने अपना जिस्म देखा तो कहा मैं तो फिर से मर्द बन गया हूं, फिर से मैं तो मर्द बन गया हूं। तब उसने देखा तो उसके कपड़े जो उसके कपड़े थे वो उसी दरिया के किनारे मिले। उसने कपड़ों को पहनने के बाद में अपने घर पे गया। जाने के बाद में अपनी बीवी से कहा, उसकी बीवी कहती यार बहुत जल्दी आ गए आप, क्या नहा के नहीं आए? कहा नहाने की बात कर रही हो मेरी बीवी, तो वो 8 बच्चे कहाँ हैं? बीवी ने कहा कौन से 8 बच्चे? तो इसने सोचा यार मेरी बीवी को 8 बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता है, चलो बात यही रफा दफा कर देते हैं। कहा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था। कहा मैं वाकई में जल्दी आ गया? कहा बहुत जल्दी आ गए। कहा क्या मतलब? कहा देखो तुम मछली डाल करके गए थे, वैसी मछली अभी जिंदा है, बहुत जल्दी, वाकई में तुम बहुत जल्दी आ गए।
تو बीबी कहती है सुनो मेरे सरताज मैं अभी मछली बना देती हूँ। तो वो कहता है यहूदी ऐ मेरी बीबी सुनो, अब मछली बनाने का कोई काम नहीं है, मछली इतने टाइम नहीं बनाई जाएगी। अब उठो बगदाद के दूल्हा के पास में चलते हैं, बगदाद वाले बाबा के पास में चलते हैं। जब हुजूर गौसे आजम के पास में पहुंचे, हुजूर गौसे आजम वही बयान कर रहे थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए। अब ये यहूदी दरवाजे पर पहुंच गया तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, मुरीदों से कहा ऐ मेरे मुरीदों, अगर जिसको मेराज पे यकीन ना हो तो वो यहूदी दरवाजे में खड़ा है उससे पूछ ले। सुभान अल्लाह। जिसको यकीन ना हो वो उससे पूछ ले। जब इतना कहा तो वो यहूदी आता है हुजूर गौसे आजम के कदमों में गिर जाता है, कहने लगा हुजूर अरे मुझसे ना पूछिए, बस इतना बता दीजिए मदीने के ताजदार का रास्ता बता दीजिए, मदीने तक जाने का रास्ता बता दीजिए, अरे मुझको भी कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम कर दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम ने कलमा पढ़ाया, दाखिल इस्लाम कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहे रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहे रखो कदम गौसे आजम। परवरदिगार से दुआ है कि मेरे बोलने में जो गलती हुई अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ फरमाए और हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। हुजूर गौसे आजम के सदके में हमारा सबका खात्मा ईमान के साथ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।